Good morning, students. So, before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. Okay. So, in the last lecture, we have learned about Tipu Sultan. We have learned about Maratha Empire. Okay. So, if we talk about Tipu Sultan now, you know very well that Tipu Sultan was the ruler of Mysore, and he was the son of Hyder Ali, and he died in 1799 for defending his capital. Name please. Yes, Srirangpatnam. And he known as the Tiger of Mysore also. I told you on that day that one story behind this, and that is that he killed the tiger when he fought with the tiger, means in that battle he won. And we know very well that Mysore state, where was the Mysore state? Karnataka, some part of Maharashtra and some part of Kerala. And we know very well that in Karnataka there are so many tigers na. So, and on his flag also the tiger picture was there na. So dear students, it is all about Tipu Sultan. Now, if we talk about Maratha Empire, we know very well that what was their vision. Yes, they want to capture Delhi. Okay, they want to increase their power. So for that they fought third battle of Panipat with Ahmad Shah Abdali. But in that battle who defeated? Yes, Marathas. Okay, and after that battle, means third battle of Panipat, that battle they fought with Ahmad Shah Abdali na. And after that battle what happened? The Marathas power that is broke down in small pieces, means जो सूबेदार थे, जो chiefs थे, they established their independent province na. Like earlier also it happened after the death of Aurangzeb in Mughal Empire. Now the same thing happened in this Maratha Empire also. And we know very well that at that time in Pune their Peshwa was there. ओके जो पेशवा थे, मैंने बताया था पीसेस पेशवा, पीसे पुणे एंड पीसे पोजीशन, मीन्स उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होती थी. और जितनी भी उनकी कॉन्फिडेंसी मीन्स जो अलायंस मीन जो यूनियन थी, जो मीटिंग्स थी उनकी, वो किसके अंडर होती थी? पेशवा के अंडर. ओके, सो अप टू हियर वी लर्नड ऑल दीज थिंग्स ना इन द लास्ट लेक्चर. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मराठाज वॉर. ओके, नाउ वी नो वेरी वेल दैट मराठाज थे जो दे सपोर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी ना अगेंस्ट टीपू सुल्तान. We know very well. Now in the last lecture also I told you कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी की भी सगे नहीं थे. बट यहाँ पे क्या था कि स्टार्टिंग में जो मराठा एम्पायर थी दे वर वेरी पावरफुल. सो ब्रिटिशर्स को डर था कि इतने पावरफुल किंग जो ये रूलर्स हैं, हाँ, अगर हम इन पे अटैक करते हैं डायरेक्टली तो हमें नुकसान होगा. वी नो वेरी वेल दैट इन द मैसूर बैटल, मीन्स इन मैसूर केस द कंपनी दे स्टार्टेड डायरेक्ट आर्मी फोर्स ना, मीन्स आमना सामना किया उन्होंने डायरेक्ट. सो मराठास पे भी कर सकते थे वो, बट दे नो वेरी वेल दैट दे आर पावरफुल. बट नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द मराठा एम्पायर, द मराठा पावर दैट इज़ ब्रोक डाउन. और जो सरदार थे, जो सूबेदार थे, अब उनमें क्या स्टार्ट हो गया? इंटरनली कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. मीन्स जो मराठा रूलर थे, जो सूबेदार थे छोटे छोटे, वो एक दूसरे से ही लड़ने लगे. लड़ना तो चाहिए था उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो ब्रिटिशर्स है जो बाहर से आए हैं, बट वो एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं. एंड द ब्रिटिशर्स दे वर अवेयर अबाउट दिस कंडीशन ऑल्सो वेरी वेल. दे नो वेरी वेल दैट नाउ in these means internal conflicts are there in these Marathas. Okay, so they started, means they start to plant on these attack on these Marathas. So let's discuss the today's topic. See beta, war with the Marathas. Now Marathas were not defeated in the single war. If we talk about, I told you earlier also that Marathas they were very powerful. Okay, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स आए उन्होंने उन पे अटैक किया और एक ही रात में उनको डिफीट कर दिया. नो, किसी सिंगल वो ऐसा भी नहीं था कि एक वॉर हुआ और उसके बाद वो डिफीट हो गए. नो, अब उनके बीच में कितने वॉर होते हैं? 3. ओके, 3 वॉर फॉट बिटवीन मराठाज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मीन्स 3 एंग्लो मराठाज वॉर देयर. ओके, सो सी, फर्स्ट
कंपनी सब्जुएटेड मराठाज इन अ सीरीज ऑफ वॉर। मीन्स जो कंपनी थी उसने मराठाज को कैसे कैप्चर्ड किया, मराठा पावर को कैसे तोड़ा, एक सीरीज थी वॉर की। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट वॉर, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, दैट इज द टाइम पीरियड बेटा 1775 टू 1782। ओके, इस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट जो मराठा जो वॉर था, एंग्लो मराठा वॉर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर, आफ्टर दिस वॉर, इसमें किसी की भी मतलब क्लियर नहीं बोल सकते हम कि मराठाज की डिफीट हुई या ईस्ट इंडिया कंपनी की डिफीट हुई। बट यहाँ पर एक चीज़ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल गया था कि मराठाज जो हैं वो रियल में पावरफुल हैं। मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अंदर से जो ब्रिटिशर्स थे वो डर गए थे कि ये सच में पावरफुल हैं, हमने इनके ऊपर अटैक करके गलती की है, अभी हम इतने पावरफुल नहीं हुए कि हम इन पर अटैक कर सके। ओके, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस वॉर, सी बेटा, नो क्लियर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिशर्स की क्लियर विक्ट्री नहीं हुई। मीन्स अब ऐसा नहीं था, मीन्स ये लगा लो कि एक तरह से ये ड्रॉ हो गया था। ओके, मीन्स इसमें किसी की भी विक्ट्री हम नहीं बोल सकते। एंड आफ्टर दिस वॉर वन ट्रीटी वॉज देयर एंड दैट इज सालबाई। ओके, सो ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइंड। अब व्हाट इज दिस सालबाई ट्रीटी बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन किया, दैट फॉर 20 ईयर्स दे विल नॉट फाइट एनी वॉर। ओके, मीन्स 20 ईयर्स तक वो एक दूसरे के साथ कोई भी वॉर फाइट नहीं करेंगे। कौन? मराठास और ब्रिटिशर्स। अंडरस्टूड? सो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हाई दे साइंड दिस ट्रीटी? नाउ आई टोल्ड यू ना दैट दे आर अवेयर अबाउट द मराठास पावर। ओके, अब उनको और भी अंदाज़ा हो गया था क्योंकि उनका आमने सामने की टक्कर हो गई थी ना। पहले उनको वैसे पता था थियोरेटिकली, बट अभी उन्होंने प्रैक्टिकली अटैक करके देखा ना उनके ऊपर, और उनको रियलाइज़ हुआ हो ये तो बड़े पावरफुल है, ठीक है, और हमने इनके ऊपर गलती कर दी अटैक करके। अब हमें क्या करना है? अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है, अपनी पावर को एक्सपेंड करना है। अब उसके लिए ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? टाइम, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, 20 ईयर्स के लिए बोल दिया कि 20 ईयर्स तक ना तो आप हमारे ऊपर अटैक करना, ना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। मीन्स हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? सो नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 20 ईयर्स? सो ये 20 ईयर्स का जो टाइम था इसमें क्या किया ब्रिटिशर्स ने? अपने आप को एम्पावर्ड किया। ओके, अपनी पावर को इंक्रीज़ किया, उन्होंने एक्सपेंड किया। नाउ द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड दैट इज इन 1803 टू 1805। ओके, so in this war now we know very well कि जो ब्रिटिशर्स है वो पावरफुल हो गए हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था इस मराठास पावर का। नाउ ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन द वॉर। ओके, कि जो ब्रिटिशर्स हैं मीन्स वो सक्सेसफुल हो ही गए थे काफ़ी हद तक। ओके, एंड ब्रिटिशर्स गेन्ड द टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। मीन्स जो मराठास के अंडर में थी कुछ पार्ट उन्होंने टेरिटरीज़ का अपने अंडर में ले लिया। मीन्स आफ्टर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो विक्ट्री थी किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट कम्प्लीटली उन्होंने वो कैप्चर नहीं कर पाए मराठास की टेरिटरीज़ को, कुछ पार्ट को किया था उन्होंने। एंड इन दैट उड़ीसा वॉज देयर, आगरा एंड दिल्ली। अंडरस्टूड? सो आफ्टर दिस वॉर दिस हैपेंड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सो दैट इज़ द टाइम पीरियड 1817 टू 1819। ओके, ये लास्ट था। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो मराठास वॉर थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको पूरी तरह से क्रस्ट कर दिया था, कुचल दिया था। ओके, नाउ सी मेजर एंड डिसिव बैटल मराठास पावर वर क्रस्ड टोटली। शी आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी क्रस्ड द मराठा पावर टोटली। मीन्स उन्होंने टोटली जितना भी मराठा जो एम्पायर था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। ओके, Now, Peshwa was removed and sent away to Bithur in Kanpur with a pension. We know very well that who was Peshwa? पेशवा कौन थे? जिसके अंडर में वो सारी अपनी मीटिंग्स लेते थे, जो सरदार्स थे मराठास, ठीक है। मीन्स एक तरह से ये लगा लो पेशवा उनके हेड थे। अब उन्होंने क्या किया, पेशवा वी नो वेरी वेल कि पुणे में उनकी हाईएस्ट पोजीशन थी। अब उन्होंने पुणे से पेशवा को शिफ्ट कर दिया, उनको कहाँ पर भेज दिया? बिठूर में, कि जो नियर कानपुर है, कि आप वहाँ पर जाकर रहें और आप रूल नहीं करेंगे, हम आपको पेंशन देंगे और आपको उसी पेंशन पर
रहना है, ठीक है। सो दिस हैपेंड आफ्टर दिस बैटल। नाउ बेटा हियर ऑल्सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ये बहुत ट्रिकी थे, ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ट्रिक्स यूज़ करते थे वो। अब ये यहाँ पर जो पेशवा थे इनको मार भी सकते थे पुणे में, बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो ये दिखाना चाहते थे कि पुणे में पावर चेंज हो चुकी है। पावर किसकी चेंज हुई है कि अब पेशवा नहीं है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है पोजीशन में, मींस हाईएस्ट पोजीशन किसकी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की। सो ये दिखाने के लिए पेशवा को भी और वहाँ के सब्जेक्ट्स जो थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो पेशवा थे उसको शिफ्ट किया कहाँ पर, बिठूर में। अब बिठूर कानपुर की बात आती है तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी उसके बारे में भी है। ये बिठूर और कानपुर आगे जाके उसी स्टोरी में ऐड होंगे, और दैट वी विल रीड इन द रिवोल्ट 1857 इन next chapter. Okay, so beta up to here it is clear that what happened. Firstly, the East India Company, they know very well now that internally conflict started between these Marathas na, so they planned to attack on Marathas, but in first Marathas means Anglo-Marathas war, they not get any success. So after that they signed Salbai Treaty, and according to that treaty for 20 years they signed that for 20 years they will not attack on each other, and in these 20 years they empowered themselves, and again after 20 years they attacked on Marathas, means in the second Anglo-Marathas war started, and in that war the East India Company succeeded but not totally. In according to that the East India Company captured Odisha, Agra and Delhi. Okay, and in third Anglo-Maratha war they crushed the power of Marathas and they shift the Peshwa Pune to Bithur. Understood beta? So up to here it is clear. Now if you want to take screenshot then take please.